it has started. So good morning friends, welcome to our next lecture. In our last lecture, we have seen about the balancing depth contour or balancing depth. I have told you that balancing depth of the canal is that depth wherein the quantity of excavation is equal to the quantity of banking. Means why? Because the canal construction takes lot of the money. So therefore, as a civil engineer, we should take that much precaution that that work should be done in as minimum expenses as possible. So therefore, the care is to be taken while designing the canal और while aligning the canal. Alignment जब करते हैं तब ये करते ही है केयर, ये मैंने भी लिया है काम करते वक्त, that depth of cutting should be as much as possible, should be depth of banking. हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है 100%, लेकिन 30 40 50% it is possible. Sekurd has got right bank canal is 100 kilometers and it is a very huge canal. So therefore huge cost is required, crores of the rupees are required. So if the banking, more earthwork is there as compared to cutting, or more cutting is there as compared to the banking, then the both expenses will be recurred repeatedly. बैंकिंग के लिए ज्यादा है तो और कहीं से तो भी माटी बाहर से लाना पड़ेगा, सॉइल, और खर्चा बढ़ेगा, तो इसलिए वो हम बैलेंसिंग डेप्थ रखते हैं. और ऐसे ही बैलेंसिंग डेप्थ अभी जो है फिक्स डेप्थ है, बैलेंसिंग डेप्थ जो निकालते हैं क्योंकि कैनाल सेक्शन फिक्स है, सो बैलेंसिंग डेप्थ इज फिक्स्ड. सो अकॉर्डिंग टू द वेरिड कैनाल बेड लेवल, है ना, कैनाल बेड लेवल लेकिन फिक्स है क्या? नहीं है. द कैनाल बेड लेवल डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट ऑफ द कैनाल. ओके, कैनाल बेड लेवल काय के ऊपर डिपेंड है? कैनाल के स्लोप के ऊपर डिपेंड है. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द beginning of the canal, that is at the outlet of the canal from the dam. डैम से जो पानी निकलता है तो वो उस वक्त कैनाल की जो बेड लेवल रहती है, जो हमने कल बोला था कि उसको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लेवल हम समझते हैं अभी डैम में जो एमडीडीएल है. तो एमडीडीएल ऑफ द डैम मे बी ए कैनाल बेड लेवल एट द बिगिनिंग maximum times. And now that canal has got the slope, so canal bed level will go on decreasing along with its length. जो भी हम ग्रेडियंट देते हैं 1 in 1000, 1 in 2000, 3000, 4000, 1 in 10,000 भी रहता है. बहुत फ्लैटर कैनाल रहता है, जितना लंबा रहता है लेंथ ऑफ द कैनाल इंक्रीजेस, द कैनाल इज फ्लैटर. सो द कैनाल बेड लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो इन दैट कैनाल बेड लेवल फ्रॉम चेन एजेस टू चेन एजेस, पहले 0, 30, 30, 60, 90, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर्स, है ना, एल सेक्शन, इसलिए तो हमने थोड़ा सा समझ लिया. सो ऑल एट ऑल दिस चेन एजेस द कैनाल बेड लेवल विल गो ऑन रिड्यूसिंग एंड विल बी वेरिंग. वो कैनाल बेड लेवल में यदि हम ये बैलेंसिंग डेप्थ ऐड करते हैं ऑल एट ऑल दिस चेन एजेस, then you will find a variation in that balancing depth also. So therefore the level that has been shown at various changes by adding this balancing depth into the canal bed level is called as the balancing depth contour. कहीं तो भी नोटबुक में लिख के रख दीजिए. इट इज कॉल्ड एज बीडीसी, इन शॉर्ट बैलेंसिंग डेप्थ कंटूर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, आप जब काम करोगे तब आपके ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंसिंग डेप्थ and what is the importance of the balancing depth contour. We plot that contour on the plan, on the sheet of the canal alignment, और उस हिसाब से कैनाल अलाइनमेंट जो रहती है, कैनाल जो हम ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वो प्लान में हम वो बैलेंसिंग डेप्थ कंटूर के पास पास कैनाल रखते हैं.
जरा इसका मतलब समझते जाइए, पास पास रखते हैं इसका मतलब क्या, वहां पे ग्राउंड लेवल ऐसी मिलती है फिर हमें कि द कैनॉल रिमेन्स इन बैलेंसिंग डेप्थ। चलो आगे जाते हैं, नाउ वी विल मूव ऑन टू द टुडेज डिस्कशन। नाउ द लॉसेस इन कैनॉल्स। Today we'll be discussing about the losses in canals, then various types of the canals according to its canal bed level and ground level, and further regarding the designs of the canal. So losses in canal is very important because the canal flows through the soil. So the soil has got permeability. So therefore, while the canal flows through the soil, the foremost or the most loss that may occur is due to the percolation, okay, seepage or percolation. That is the loss that may occur. उसके लिए क्या करते हैं प्रिकॉशन, वो देखेंगे हम, वो अभी धीरे धीरे ध्यान में आएगी जैसे हमें लॉसेस ध्यान में आएगी. So deep percolation and seepage are the main losses. Second is in our region, like the region of Maharashtra or Vidarbha. Today we have more than maybe cloudy, but over and all in summer we have more than 45 degrees temperature, degrees Celsius, and overall in the year not less than 30 degrees or 35 degrees of the temperature is there. Also wind is also there, so evaporation takes place. So the percolation and evaporation are the losses. These are also known as the transmission losses, है ना. जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है वायर में से एक जगह से दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रिसिटी के भी लॉसेस होते हैं, उसको भी ट्रांसमिशन लॉसेस बोलते हैं. हमारे जो इलेक्ट्रिक बिल है उसमें वो ऐड होके आता है ट्रांसमिशन लॉसेस, भले ही हम नहीं करते. वैसे कैनाल में भी लॉसेस होते हैं, वो ट्रांसफर होता है पानी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ट्रांसमिशन लॉसेस बोलते हैं. इफ दे आर नॉट अकाउंटेड, lesser quantity of water will be available for cultivation at the tail end, है ना. यानी कहने का मतलब कि ये जो लॉसेस है, इफ दे आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिजाइनिंग द कैनाल डिस्चार्ज, दिस डीप percolation, losses due to percolation and losses due to evaporation, if these are not considered, इसको यदि हमने कैनाल का डिस्चार्ज कैलकुलेट करते वक्त इसको कंसिडर नहीं किया, तो हमें वी कैनॉट सप्लाई द वाटर टिल द टेल एंड, यानी आखिरी तक के ये पानी नहीं हम क्या ना खेती को सप्लाई कर सकेंगे, है ना. हम गलती से भूल गए कि ये पर्कुलेशन लॉस या सीपेज लॉस है, इवेपोरेशन लॉस, कैनाल का डिस्चार्ज निकालते वक्त वी हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट. तो क्या होगा कि आप डैम से तो पानी छोड़ेंगे जितना डिजाइन डिस्चार्ज है, जितना खेती को आवश्यक है उतना, लेकिन in the meantime some water will be lost in percolation, some will be lost in the evaporation, and at the tail end, आखिरी में, क्योंकि आपने ये पानी कंसिडर नहीं किया था, तो आखिरी में पानी बचेगा ही नहीं टेल एंड के खेतों को देने के लिए. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू थिंक द क्वांटिटी ऑफ percolation एंड evaporation एंड अकॉर्डिंगली इंक्रीज द डिजाइन डिस्चार्ज. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए. आप फिर से मैं आपका ख्याल यूनिट नंबर 1 और 2 के ऊपर देता हूं. हमने क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में जो न्यूमेरिकल आखिरी के 2-3 सॉल्व किए थे, तो उसमें हमने रिजर्वायर कैपेसिटी और कैनाल डिस्चार्ज वर्कआउट करते वक्त दिस इवेपोरेशन लॉस, percolation loss, all these losses we have taken into account and accordingly calculated the quantity of the canal and the quantity of reservoir. The evaporation losses, transmission losses, and the seepage losses. We have evaporation loss, a small percentage loss in unlined canal or maybe in lined canal, which is less than 1 to 2% of total water entering into canal. Depends on the climatic factor such as the temperature, humidity, and wind velocity, and also canal factors such as the water surface area, water depth, and velocity of flow. Maximum loss in summer due to high temperature, high velocities, wind velocity, and also maximum in unlined canal due to the wider water surface area, shallower water depth, and low velocity.
The average evaporation loss per day may vary between 4 millimeter to 10 millimeter. देखिए कितना ज्यादा इवेपोरेशन लॉस हमारे इधर होता है। एक दिन में 4 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर पानी इवेपोरेट हो सकता है। मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है क्लाइमेटिक फैक्टर एंड कैनाल फैक्टर। कैनाल फैक्टर में वाटर सरफेस एरिया है ना, कैनाल यदि सॉइल में है, माटी में है, अनलाइंड कैनाल है, तो वाटर सरफेस एरिया हमें ज्यादा देना पड़ता है कैनाल का सेक्शन। तो उसके कारण सरफेस एरिया मोर, डेप्थ लेस, वाटर डेप्थ एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो आल्सो रिड्यूसेस। सो जितना देर कैनाल में पानी रहेगा उतना वो ज्यादा इवेपोरेट होगा। So this is there are certain losses, transpiration losses and the seepage, evaporation plus transpiration. Transpiration losses है ना, losses through the vegetation leaves, जो झाड़ रहते हैं। अब क्या होता है कि sometimes certain vegetation and the weeds, कुछ झाड़ छोटे बड़े और घास ये कैनाल में बहुत बढ़ता है। बढ़ना नहीं चाहिए, वो तो निकालते रहना चाहिए साथों साथ। तो वो दैट ऑल्सो रिजल्ट्स into the losses due to transpiration. So evaporation and transpiration both occurs. Now the seepage loss in unlined canal generally, as the soil has got the property of absorption of water in upper layers below the canal bed, and also due to percolation of water into the water table, that raising the water table. So this is the seepage loss. It is also quite big. So to overcome all these losses, what should be done? That we will see in the last part, that is regarding the canal lining. Now we will see what are the cross sections of irrigation canal. Irrigation channel या irrigation canal का cross section कैसा रहता है? A canal is generally taken in such a way that its section is partly in cutting, partly in filling, यानी balancing depth। यानी कुछ पार्ट जो कैनाल का ये खोदाई में रहना चाहिए, कुछ पार्ट ये एम्बैंकमेंट या भराई में रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बताया, मैं बाद में और बताता हूँ आपको। इन ऑर्डर टू अप्रोच क्लोज टू बैलेंसिंग डेप्थ, ये बैलेंसिंग डेप्थ कंसेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स हाउएवर द कैनाल हैज टू बी कैरीड थ्रू द डीप कटिंग और फिलिंग। बहुत बार क्या होता है कि ग्राउंड लेवल ऐसे रहते हैं कि एक आधी पहाड़ी आती है बीच में, तो वो पहाड़ी को पूरा घूम के जाने की बजाय वो पहाड़ी को बीच में से कट करके ले जाना, खोदाई करके ले जाना ज्यादा सस्ता पड़ता है ना। बैलेंसिंग डेप्थ के लिए वी हैव टू मूव अराउंड दैट हिल और दैट माउंटेन, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन कट द कैनाल थ्रू दैट माउंटेन और द हिल एंड टेक स्ट्रेट, है ना। जैसे बहुत बार रेलवे या रोड भी हम पहाड़ को बहुत घुमा के हुए लेके जाने की बजाय टनल कर डालते हैं सीधा। और ऐसा ही एक आधा बीच में वैली आ गई, एक आधा बहुत बड़ी नदी आ गई, नाला आ गया, तो उस वक्त कैनाल की बेड लेवल ऊपर रहती है, सॉइल ग्राउंड लेवल नीचे रहती है, तो वो कैनाल फीलिंग में या बैंकिंग में आता है। तो उस समय भी हमें ऐसे ही सीधा ले जाना पड़ता है, घुमा के ले जाते वक्त तो लेंथ बढ़ती है, तो कॉस्ट भी बढ़ती है। So therefore the canal section is in three parts, is divided into, that is canal section in cutting, canal section in filling or the embankment, full embankment, यानी canal bed level से, यानी canal bed level is below the ground level. In cutting means the canal bed level is below the ground level, but the canal top level, top bank level बोलते हैं उसको, TBL, that top bank level is above the ground level, तो उसको उसको partial cutting banking बोलते हैं। filling cutting यानी पूरा canal, the full depth of the canal or that canal bed level is below the ground level, and here in filling the ground level is below the canal bed level और canal bed level is above the ground level। ठीक है, हम देखते हैं धीरे धीरे, एकदम इतने फास्ट में नहीं समझेगा। पहला in cutting ground level above the top bank level, in cutting, in filling ground level below bed level of canal, and in partial cutting filling ground level is between bed level and top bank of the canal। ये पहला जो सेक्शन बताया है आपको, ये तीसरे नंबर का है, कैनाल सेक्शन इन पार्शियल कटिंग एंड बैंकिंग।
है ना। कैनाल जो है इसमें द सम पार्ट ऑफ द कैनाल इज बिलो द ग्राउंड एंड सम पार्ट ऑफ द कैनाल इज अबव द ग्राउंड। कैनाल सेक्शन तो बनेगा हमारा डिपेंडिंग ऑन द डिस्चार्ज एंड द फ्री बोर्ड। तो उसमें फुल सप्लाई डेप्थ और फ्री बोर्ड ऐसा रहेगा। उसमें बॉटम विड्थ भी रहेगी, कुछ टॉप विड्थ रहेगी डिजाइन बेड विड्थ, टॉप विड्थ, बेड विड्थ प्लस टॉप विड्थ डिवाइडेड बाय 2 into the total depth will give you the area into velocity will give you the discharge. Very simple designing the canal, and that velocity is given by Manning's formula। ठीक है, तो इतना सिंपल है। लेकिन ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, लेकिन जब व्हेन द कैनाल इज इन पार्शियल कटिंग एंड बैंकिंग, जिसको बोलते हैं कटिंग एंड, सम पार्ट ऑफ द कैनाल इज इन एक्सकवेशन एंड सम पार्ट इज इन बैंकिंग, जैसे यहाँ बताया गया है। तो जब व्हेन द कैनाल इज इन एक्सकवेशन, उसके जो साइड स्लोप रहता है वो कम रहता है, फ्लैट थोड़ा स्टीप रहता है 1:1। एंड इन बैंकिंग द स्लो साइड स्लोप ऑफ दैट अर्थवर्क इज 1.5:1 और 2:1, ऐसा स्लोप रहता है साइड का। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाते हैं हम थोड़ा, इसलिए आपको धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे तो और अच्छे से समझते आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डवला भी बताया, ये क्या है मैं आगे में बता देता हूँ, लेकिन यही देख लीजिए आप, बहुत आगे के 2-4 स्केच में दिखेगा। दिस इज डवला, दिस आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन। द बेड विड्थ बी, कैनाल बेड की जो लेवल रहती है उसको कैनाल बेड लेवल करके बोलते हैं सीबीएल। सीबीएल में यदि हम फुल सप्लाई डेप्थ ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन, तो जो लेवल आती है उसे एफएसएल करके बोलते हैं। और एफएसएल में यदि फ्री बोर्ड हम ऐड करते हैं डेप्थ, तो जो लेवल आती है उसको टीबीएल करके बोलते हैं, टॉप बैंक लेवल। ठीक है, तो कैनाल बेड लेवल, एफएसएल एंड टीबीएल आर द 3 very important levels in the canal। As well as canal has got the bed width, canal has got the full supply depth width, canal has got the top width also, again depending on the side slope and the depth। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। along with that every canal has got on both sides, जैसे एक साइड रहती है उसे, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में बताया है, तो उसको सर्विस रोड साइड करके बोलते हैं। सर्विस रोड यानी वहां से जनरली एक आधी व्हीकल पास होना चाहिए, इतनी विड्थ रहती है बैंक की। एंड ऑन वन साइड, मे बी ऑन द राइट साइड, यहाँ बताया है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द इंस्पेक्शन पाथ। ठीक है, नोटबुक में कहीं तो भी लिखते जाइए। ऑन वन साइड बैंक इज कॉल्ड एज द इंस्पेक्शन पाथ एंड अनदर साइड बैंक टॉप इज कॉल्ड एज द सर्विस रोड। और उसको लग के एक डवला करके रहता है, वो मैं आगे में आपको बताता हूँ। So this is the over and all section of the canal in partial cutting and filling। ठीक है, but the design section of the canal is always trapezoidal। यानी यहाँ पे भले ही एक खचका दिख रहा है आपको कि कटिंग के बाद में थोड़ा बर्म दिया है, आपके पास में स्केच आंखों में के सामने होगा, तो एक लेफ्ट साइड में आपको एक बर्म यानी एक खचका दिया है, और उसके बाद में फिर से बैंकिंग चालू किया। वैसे ही राइट साइड में सिमेट्रिकल रहता है दोनों साइड में। ठीक है, दैट बर्म इज प्रोवाइडेड, अगेन अभी बता देता हूं मैं, ये बर्म इसलिए देते हैं, बहुत जगह बर्म दिखेगा आपको आगे में भी, वो इसलिए देते हैं कि बरसात के कारण ये बैंकिंग की जो सॉइल है ये कैनाल में बह के अंदर नहीं आना चाहिए। और वैसे ही ये कटिंग का जो स्लोप है 1:1 और बाद में बैंकिंग 1.5:1। देखिए 1.5:1 को एक्सटेंड किया है इसलिए उतना बर्म आया, दैट इज केप्ट अनएक्सकवेटेड। ये जो पार्ट है बर्म का वो 1:1 से ही एक्सकवेट करते हैं। and that is left for 2 purposes। First is to control the flow of the soil due to rains into the canal of banking, as well as the slipping of the soil of excavation। वो समझो स्लिप हो भी गई तो भी कैनाल का जो डिजाइन सेक्शन है वो मेंटेन रहेगा, सॉइल सिल्ट निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, therefore this berm is provided। This berm you will see later on। Now the next we will be seeing is the canal in full cutting, है ना। मैं आपको बाद में फोटो भी बताने वाला हूं तो आपको और अच्छे से ध्यान में आएगा। कैनाल पहले ये समझ लीजिए, जब ग्राउंड लेवल इतनी ऊपर रहती है कैनाल के,
कि वो पूरा कैनाल का टॉप बैंक लेवल, द ग्राउंड लेवल इज आइदर अबोव द टॉप बैंक लेवल ऑफ द कैनाल, देन वी से दैट द कैनाल इज इन फुल कटिंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि जमीन जो है वो कैनाल का जो टॉप बैंक लेवल है, टीबीएल, डिजाइन टीबीएल, दैट इज सीबीएल प्लस एफएसडी प्लस प्री बोर्ड। आप शायद साथों साथ में लिखते गए तो आपको और अच्छे समझते जाएगा कि ये टीबीएल प्रकार क्या है। सीबीएल कैनाल बेड लेवल प्लस एफएसडी फुल सप्लाई डेप्थ विच इज इक्वल टू एफएसएल फुल सप्लाई लेवल, एफएसएल प्लस प्री बोर्ड इज इक्वल टू टीबीएल टॉप बैंक लेवल। तो जब कैना ये ग्राउंड जो रहता है ना, ग्राउंड तो टोपोग्राफी की अलग अलग जगह अलग अलग रहेगी, हर जगह एक सरी का थोड़ी ग्राउंड मिलता है हमें लेवल। तो व्हेन समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली दिस ग्राउंड लेवल इज अबोव द टीबीएल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैनाल तो बनाना है, तो वी हैव टू एक्सकवेट द फुल कैनाल इनटू द ग्राउंड, जमीन में पूरा खोदना पड़ेगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैनाल बेड लेवल। तो उसको बोलते हैं कैनाल इन फुल कटिंग। ठीक है, ऐसा कैनाल पूरा खोदने के बाद में दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा हम स्पॉइल बैंक या अर्थवर्क करते ही है, फिर से सर्विस रोड और इंस्पेक्शन पाथ के लिए। ठीक है, तो दिस क्योंकि इसमें से खुदाई में से बहुत मट्टी निकलती है ना, उसको भी फेंकना पड़ता है बाजू में, उसको स्पॉइल बैंक करके बोलते हैं। आखिरी में हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पॉइल बैंक। और ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कैनाल सेक्शन इज इन फिलिंग। when the understand the situation, when the canal bed level है ना, कैनाल बेड लेवल काय के ऊपर डिपेंड है, मैंने पहले ही आपको बताया, दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। एक तो जो डैम से वो निकलता है कैनाल, वो डैम की एमडीडीएल मैक्सिमम ड्रॉडाउन लेवल, और कैनाल बेड लेवल दूसरी डिपेंड है कि हमने जो डिजाइन किया है उसमें जो कैनाल को स्लोप दिया है उस हिसाब से कैनाल बेड लेवल वेरी होती जाती है, और फिर से हम कैनाल वैसा ही अलाइन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेतों को वो पानी दे सके। तो ऐसा कभी अनफॉर्चुनेटली फिर से सिचुएशन आ सकती है कि कैनाल बेड लेवल इज अबोव द ग्राउंड लेवल, है ना, जैसे वैली है, एखादी दरी है, वैली है, एखादा बड़ा नाला है, नदी है, तो तब ग्राउंड लेवल नीचे ही जा रहेगी और कैनाल बेड लेवल में भी अबोव द ग्राउंड लेवल। सो इन दैट केस द कैनाल इज टू बी प्रोवाइडेड, कैनाल तो प्रोवाइड करना ही है। एक तो ब्रिज देना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर ऐसा कैनाल विल बी इन फुल एम्बैंकमेंट बोलते हैं उसको। कैनाल सेक्शन इज इन फिलिंग और फुल एम्बैंकमेंट, पूरा कैनाल सेक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा आर्टिफिशियली फील्ड सॉइल से करना पड़ेगा, खोदाई में नहीं होगा, वो बैंकिंग से करना पड़ेगा। Then in that case the section is like this and the slopes on sides are given according to the stability of soil। तो वो 1.5:1, 2:1, 3:1 जैसी सॉइल है ना, थोड़ा सा एंगल ऑफ रिपोज वगैरह उसमें ख्याल किया जाता है, तो उस हिसाब से इसको साइड स्लोप देते हैं। डिजाइन सेक्शन तो रहता ही है कैनाल का एक, लेकिन इसमें हो सकता है कि ड्यू टू द सॉइल वी हैव टू गिव फ्लैटर सोप, एफएसडी उतनी ही, फुल सप्लाई डेप्थ उतनी ही, एफएसएल वही, और फ्री बोर्ड भी वो। तो अगेन द टॉप बैंक लेवल, द एफएसएल एंड द सीबीएल एंड द बैंकिंग फिलिंग। ठीक है, again you can see here due to the banking there is again possibility of the seepage of water through the both sides, that is the service road side and the inspection path side सीपेज होगा। तो वो सीपेज के लिए भी क्या मेजर करना चाहिए वो हम और आगे देखते जाएंगे। इसमें भी डैम जैसे जोन्ड एम्बैंकमेंट हम करते हैं, हार्टिंग केसिंग, या कभी कभी एखादा बर्म ज्यादा का प्रोवाइड करते हैं डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, सैचुरेशन लाइन या फ्रियाटिक लाइन शुड ऑलवेज बी एज बिलो एज पॉसिबल, नहीं तो वो कैनाल के एम्बैंकमेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगेन दिस 3 टाइप्स ऑफ द सेक्शन। ओके, I tried to show you these photographs. With the help of these photographs you can understand the first is the canal is in part cutting and filling। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा
कि ये जो बर्म है ना, ये बर्म है, ये ऐसा बर्म यहाँ दिया है, तो ये बर्म है इधर। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो थ्रू दिस फोटोग्राफ। और आपके कहीं पास में कैनाल है तो वो भी, उसमें भी आप ये समझ सकते हैं। तो पार्शियल कटिंग फिलिंग में, तो ये बर्म जहां है वहां पे ग्राउंड लेवल है, जमीन नेचुरल लेवल ही है वहां पे अवेलेबल, लेकिन कैनाल बेड लेवल इज बिलो दिस ग्राउंड लेवल। सो वी हैव टू एक्सकवेट सम पार्ट ऑफ द कैनाल। बट द टीबीएल, ये जो दिख रही है राइट साइड में, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, दिस टीबीएल इज अबव ग्राउंड लेवल, because TBL, FSL and CBL are fixed. They are again depend on the CBL, FSD, full supply depth and freeboard. ठीक है, तो CBL is below the ground level but TBL is above the ground level. In that case the canal will be in partial cutting and filling, and the actual executed canal ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। दूसरा, अभी यहाँ पे दो फोटोग्राफ है, राइट साइड का पहले देख लेते हैं। when the canal is in cutting, है ना, आपके राइट साइड में है, और ऊपर से कैनाल इन फुल कटिंग का सेक्शन बताया है स्कीमेटिक, और राइट साइड में एक्चुअली है। तो इसमें क्या होता है कि द कैनाल फुल सेक्शन, कंप्लीट कैनाल का जो है, जैसे उसमें कैनाल बेड, सीबीएल, एफएसडी, एफएसएल एंड द टीबीएल आर बिलो द ग्राउंड लेवल। कैनाल का सेक्शन ही ग्राउंड लेवल जैसे यहाँ दिख रही है उसके नीचे है। तो नेचुरली क्यों है? क्योंकि ऐसे कोई तो भी पहाड़ी आ गई है बीच में, कोई ऊंचाई पोर्शन है, तब उसको बोलते हैं कैनाल इज इन कटिंग। कैनाल तो हमें ले ही जाना है वो स्लोप से, और ये कैनाल इन फिलिंग है ना। यहाँ पे आपको शायद फोटोग्राफ से लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि पूरा पूरा कैनाल भराई से बनाया है। ग्राउंड लेवल जो है वो काफी नीचे है कैनाल बेड लेवल के। तो दीज आर दी सिचुएशंस, अगेन पार्शियल कटिंग, filling, cutting and the field channels I try to show you. साइड स्लोप्स जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बार जो रहता है, एक कटिंग में हार्ड रॉक में 1/2:1, 1.8:1, 4:1, सॉफ्ट रॉक में 1/4:1। these are all I have given you in your notes, also you can go, but कटिंग के साइड स्लोप और फीलिंग के अलग अलग रहते, क्योंकि फीलिंग में आर्टिफिशियली वी फील द सॉइल, so therefore for stability of that soil, not to get eroded or not to get slipping नहीं होना चाहिए उसका, इसलिए we give more flatter slopes as compared to cutting। क्योंकि कटिंग में क्या है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड क्ले, सॉफ्ट क्ले, मुरूम, sandy soil etc, these gets consolidated from years to years। वैसे ही हम बर्म भी प्रोवाइड करते हैं, जब भी मैंने बताया either they are provided in the cutting or these may be provided in the banking। again these berms are provided for giving the stability, so that the soil should not get slip away in cutting, as well as in banking also such berms are provided। हम आगे में देखेंगे कि for controlling the seepage। टॉप विड्थ ऑफ द बैंक, जैसे मैंने बताया कि एक कैनाल की जो साइड रहती है उसे सर्विस रोड साइड करके बोलते हैं, और एक को इंस्पेक्शन पाथ करके बोलते हैं। तो द सर्विस रोड इज ऑलवेज हैव मोर विड्थ ऑफ द रोड। तो कैनाल के डिस्चार्ज के हिसाब से 0 to 0.15 up to 7.5 क्यूमेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन देयर इज वन इंडियन स्टैंडर्ड 7112, it has given the road width, that is the service road width and the inspection path width according to discharge। जैसे 0.15 to 7.5 है, तो सर्विस रोड 5 मीटर की विड्थ देना चाहिए और इंस्पेक्शन पाथ 1.5 मीटर का देना चाहिए। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से हम कैनाल को विड्थ प्रोवाइड करते हैं। एक आगे क्या और एक इम्पोर्टेंट है सैचुरेशन और द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको फ्रीएटिक लाइन हम बोलते हैं, है ना। कैनाल में से डिस्चार्ज तो जा रहा है, एंड इफ अनफॉर्चुनेटली द कैनाल इज इन बैंकिंग, कैनाल यदि बैंकिंग में है तो वो क्या होगा, बैंकिंग यानी एम्बैंकमेंट यानी आर्टिफिशियल सॉइल फिलिंग जिसको बोलते हैं, यानी कटिंग में नहीं है बैंकिंग में है, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट दिस वाटर इन द कैनाल विल सीप थ्रू दिस बैंकिंग। ये एक बैंकिंग में से सीप होगा, सीपेज होगा,
और हमने वो phreatic लाइन समझ लिया है, that topmost seepage line is called as the phreatic line. As this embankment is made up of the soil has got the pore, the water has got the potential energy, so this water will find the path through those pores. ठीक है, आपके ध्यान में मैंने वो अर्दन डैम में समझा दिया है, तो उस हिसाब से ये कैनाल में से सीपेज होगा, एंड दैट टॉप मोस्ट सीपेज लाइन इज कॉल्ड एज द फ्रीएटिक लाइन. ओके, इट इज कॉल्ड एज द फ्रीएटिक लाइन, और वो फ्रीएटिक लाइन के हिसाब से उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या स्लोप होगा. और the soil below this phreatic line will be saturated, soil above this phreatic line will be dry. We have learnt all about the phreatic line. Now if this continues, if this phreatic line cuts the canal at its toe, है ना, फिर से इसको हील और टो बोलेंगे, तो जो टो में से यदि पानी बाहर निकलता है तो फिर से सैचुरेशन लाइन के नीचे रहने के बाद में स्लफिंग या वाटर लॉगिंग होगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ द पाइपिंग एक्सेट्रा. प्लीज रिकलेक्ट द वर्ड पाइपिंग एंड स्लफिंग. एंड द कैनाल में सेटल डाउन, कैनाल नीचे आएगा या स्लाइड होके घसर के चले जाएगा, नीचे जाता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं. तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए दो चीजें करते हैं. एक तो क्या करते हैं कि द कैनाल इज बीइंग प्रोवाइडेड विद द हार्टिंग जोन, हार्टिंग और केसिंग वाला कैनाल, जैसे डैम करते हैं हार्टिंग केसिंग, दैट हार्टिंग इज इम्परमिएबल मटेरियल एंड केसिंग इज बिट परमिएबल और हार्डर मटेरियल, एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्टन काउंटर बर्म. ऐसे कुछ हाइट में ऐसा एखादा एडिशनल अर्थवर्क प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल एम्बैंकमेंट of certain width and certain height, so that what will this berm do, this will again take this phreatic line or extend the length of phreatic line or seepage line, and it will protect the earthwork. इसका weight भी इसके ऊपर act होगा. So this is in short the meaning of the counter berm, the purpose for which it is provided, and a type of the soil or hydraulic gradient line ये दिया है. These are all from your books. Again a very nice photograph of the canal. ठीक है, यही फोटोग्राफ का हम आगे में यूज करते हैं. कैनाल का एक कंपोनेंट है डवला करके बोलते हैं, जैसे राइट साइड में यहाँ पे आपको, यानी ये बिल्कुल सर्विस रोड और जो इंस्पेक्शन पाथ है इसके बाउंड्री पे रहता है, अंदर साइड, इनसाइड ऑफ द कैनाल और अटैच टू द कैनाल. आई विल शो यू द सेक्शन आल्सो इन आवर नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, ये बोरोपिट वगैरह जब बताऊंगा तब डवला आपको बताऊंगा. ये डवला करके माटी का एक अर्दन बंड यू कैन से कंस्ट्रक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कैनाल. दिस इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, आइदर इंस्पेक्शन साइड एंड द सर्विस रोड. इट इज अबव द full supply level by the margin of freeboard, or maybe above the top bank level. Again, to control the erosion of the canal ड्यू टू द रेन्स. ये डवला दो चीजों के लिए देते हैं कैनाल को लग के. एक तो ये बरसात के कारण ये कैनाल का इरोजन ना हो, एंड सेकंड इज इट इज लाइक ए प्रोटेक्टिव बाउंड्री फॉर द पीपल हु आर मूविंग ऑन द सर्विस रोड और इंस्पेक्शन पाथ, है ना. यानी ये एखादे बाउंड्री जैसा या बाउंड्री स्टोन जिसको बोलते हैं उस जैसा काम करता है. दिस इज डवला. इंस्पेक्शन रोड कैनाल के दोनों साइड में, आइदर ऑन द राइट साइड जिसको सर्विस रोड बोलेंगे, कैनाल के लेफ्ट साइड में इंस्पेक्शन पाथ. अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि वन साइड इज कॉल्ड एज द इंस्पेक्शन पाथ एंड अनदर साइड इज कॉल्ड एज द सर्विस रोड. एंड सर्विस रोड इज ऑलवेज ब्रॉडर, उसमें से कम एखादी जीप या एखादा ट्रक जाना चाहिए. इंस्पेक्शन पाथ जैसा पाथ है वो, तो वो पैदल जा सकते हैं. All these are provided again. What for the service inspection roadway are provided, so that we, the engineer and all the maintenance people should move along the canal. कैनाल में यदि कहीं कोई दुरुस्ती होती है, कहीं लीकेज है, कहीं बह के जाता है कैनाल, या some maintenance are there, then we should move along the canal by this road by the vehicle. फास्ट जाना है. बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कैनाल कहीं से फूट जाता है, तो for repairs and maintenance purpose both the sides have been provided with the path
One is called as the inspection path, another is called as the service road. Okay, so this is all about the inspection road. और ये डिजाइन करते वक्त कैनाल सेक्शन करते हैं तो उसमें ये प्रोविजन इसकी करते हैं। एक बोरो पिट करके एक कंसेप्ट है। व्हेन द कैनाल इज इन बैंकिंग, बहुत बैंकिंग में जब कैनाल रहता है तो उसको सॉइल रखती है कैनाल अर्थवर्क के लिए, है ना। एम्बैंकमेंट या बैंकिंग के लिए माटी लगती है और दूर से लाना कॉस्टली होता है। एखादे बार क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम विच द सॉइल इज टू बी ब्रॉट, द ट्रांसपोर्टेशन इज कॉस्टली। सो effort has been taken to take the soil by excavating the pits alongside the canal. कैनाल जैसे ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बताया FSL, और ये बैंकिंग करना है, कर्सर आपको दिख रहा होगा। ये बैंकिंग के बाजू में ही फिर खड्डा करते हैं, एक्सकवेट करते हैं खड्डा, नॉट मोर देन 30-30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट। And that pit is being excavated and soil is being taken through that pit. That is called as the borrow pit. Borrow यानी हमको मालूम है उधार लेना, तो बोरो पिट में से हम वो सॉइल लेते हैं और इससे ये कैनाल का अर्थवर्क करते हैं। और जैसे सालों साल जाते हैं तो वैसे ये बोरो पिट इरोजन वगैरह के कारण फिर से भर जाता है, या एक आधे बार ये बोरो पिट का यूज ये साइड ड्रेन के हिसाब से भी करते हैं। ठीक है, एक आधे बार कैनाल के अंदर से भी खड्डा करके पिट करके सॉइल ले जाती है, फिर से कैनाल में सिल्टिंग होके ये खड्डा भर जाता है। तो इनसाइड बोरो पिट एंड दी आउटसाइड बोरो पिट्स आर देयर। ठीक है, वैसे ही बाजू में जो मैंने डवला बताया वो डवला भी प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे यहाँ पे एक स्पॉइल बैंक करके कंसेप्ट है। बहुत एक्सकवेशन जब ज्यादा रहता है, कैनाल का खुदाई एक्सकवेशन इज मोर देन द बैंकिंग, then it is needed to be stored somewhere, तो वो माटी का जो ढीग जमा करते हैं that is called as the spoil bank। ठीक है, परमानेंट लैंड विड्थ इज ए कंसेप्ट। जब कैनाल अलाइनमेंट फाइनल होती है एंड all along the length the width of the canal at various length is worked out, उसके लिए फिर वो जमीन हमें पोजीशन में लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, फ्रॉम द प्राइवेट फार्मर्स एक्सेट्रा। सो we have to find out the total land width as well as length and the area, and that land width depend on the cross section of the canal, service road width, the inspection path width, the borrow pit, and all those things are taken into account। और बाकी के ड्रेन वगैरह, तो वो परमानेंट लैंड विड्थ उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस परमानेंट लैंड विड्थ वी टेक द एक्विजिशन ऑफ द लैंड, हम वो जमीन अपने पोजीशन में लेते हैं काम करने के लिए। बैक बर्म और काउंटर बर्म, ये हमने देखा सीपेज कंट्रोल के लिए ये बैक बर्म और काउंटर बर्म प्रोवाइड करते हैं। अगेन एडिशनल अर्थवर्क अप टू सर्टन डेप्थ और हाइट टू सपोर्ट द मेन अर्थवर्क। मेन जो एम्बैंकमेंट है उसे सपोर्ट करने के लिए ये काउंटर बर्म देते हैं, आइदर फॉर सपोर्टिंग फ्रॉम स्लाइडिंग एज वेल एज सपोर्टिंग फ्रॉम द सीपेज। ठीक है, ये टाइप ऑफ कैनाल्स है, ये हमने देखा था वैसे एक बार। एल्यूवियल चैनल, एल्यूवियल्स, ये दीज आर दी 3 photographs we might have seen earlier। The canal or the channel which passes through alluvial soil is called as the alluvial channel. The channel which passes through non-alluvial soil is called as the non-alluvial, and which passes through rigid boundary or lined canal, they are called as the rigid boundary canal, because we will be learning in our next slide or next part design of the canal through alluvial soil. So therefore this background I wanted to clear. Now alluvial channel, we know that the channel or the canal को ही channel भी बोलते हैं। Canal is the overall common word, common people. Channel is the technical word, so don't get confused. Channel is nothing but the canal. So alluvial channel or alluvial canal are excavated in alluvial soil or the silt, which carry a lot of silt along with the water. ये alluvial channel में से जो हम कैनाल ले जाते हैं, ये कैनाल अपने साथ में जब बहता है तब वो बाजू के जो उसका बाउंड्री रहती है तो वहां की सॉइल भी वो अपने साथ में इरोड करके ले जाता है।
The boundary or the perimeter of such channel is therefore made up. Why? Because the boundary of such channel is made up of the silt, commonly known as the alluvium. ये silt को क्या बोलते हैं? Alluvium. So therefore the canal is called as the alluvial channel or alluvial canal. Now we are entering into the next and very important part, which is regarding the design of the canal through alluvial soil. है ना? So please try to understand, friend, within the last 2-3 minutes, a very important concept which is called as the non-silting and non-scouring velocity. Now we are into the design of the canal or design of the channel. Now the design of any open channel flow involves 2-3 things. The first is the section, cross section of that canal or the channel, and second is the velocity. Okay, cross section and the velocity, because the discharge is fixed, because discharge or the quantity of water which will flow through the canal will depend on the crop water requirement. ठीक है, तो कैनाल में से कितना डिस्चार्ज लेके जाना है, 10 क्यूमेक्स है कि 20 क्यूमेक्स है कि 30 क्यूमेक्स है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ये आपका डिसाइडेड है, फिक्स है डिस्चार्ज क्यू। डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है अभी कि उसका एरिया फिक्स करना है, बिकॉज डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, यू ऑल नो. So you have to fix the area and you have to fix the velocity. Okay, now Q is equal to A into V, and the velocity V in this design is given by the Manning's formula. Again, 1 by N into R raised to 2 by 3 S raised to half. So overall, for design, if you will find the various design parameters, you will find that the design depends on the velocity, design depends on the cross sectional area, design depends on the R, hydraulic mean radius, which is equal to A by P, है ना, थोड़ा सा रिकलेक्ट कीजिए. और ये सब for achieving this velocity etc and all these parameters, the canal is running through alluvial soil. The property of alluvial soil is that it is made up of the silt and the clays. So when the water flows through such soil, it carries the silt adjoining the boundary of the canal, है ना. तो कैनाल का सबसे पहले हम एक वेलोसिटी कंसेप्ट 1 मिनट में समझते हैं और फिर आज रुक जाते हैं. सो नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी कैनाल के डिस्चार्ज को रहना चाहिए, फ्लो को ऐसा बोलते हैं. इसका मतलब क्या कि एज द कैनाल वाटर कैरीज द सिल्ट, द वेलोसिटी शुड नॉट बी सो लो, इतनी कम भी नहीं रहना चाहिए that silt will settle into the canal, canal में नीचे में settle हो जाएगी. Okay, so this is the first thing that is called as the non-silting velocity. And the second is velocity should not be such large, इतनी ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए कि वो फ्लो होते होते उसने साइड बाउंड्री जो है कैनाल की उसकी सिल्ट भी अपने साथ कवर करके ले जाए. It should not be that much that it should scour. Scouring should not be there. Scouring यानी आपको मालूम है, so that water should not scour the adjoining boundary silt or the soil. So that is called as the non-scouring velocity. The canal में की velocity fix हो गई अभी कि कितनी velocity रहना चाहिए कि जो नॉन सिल्टिंग हो, यानी इतनी भी ज्यादा थोड़ी रहना चाहिए कि सॉइल नीचे सेटल ना हो कैनाल में, और इतनी भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि that velocity will scour, will erode the side boundaries of the canal while the water flows into that canal. ठीक है, so that velocity is called as the non-silting and non-scouring velocity. With this concept, we will move into our next part, that is regarding the design of the non-alluvial channel. ठीक है, और फिर बाद में सबसे आखिरी में लाइंड चैनल के डिजाइन के ऊपर, कैनाल के ऊपर हम जाएंगे. Today we will take the break here.